Hello students, welcome back to my channel Dear Ma'am. Whenever in doubt, ask Dear Ma'am. So students, in this part I am going to continue the same lesson, that is footprints without feet. In previous video I explained you that how Griffin, an eccentric scientist, became invisible and how he had to pass his night in a London store. So let's get started. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. लंदन की भीड़ से दूर जाने का इच्छा ग्रिफिन के मन में आता है और वो आइपिंग नामक गांव को जाने वाली गाड़ी पकड़ लेता है, जहां वो पहुंच के वो एक इन में 2 कमरा बुक कर लेता है. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब सर्दियों के मौसम में एक अजनबी का सराय में आना हर प्रकार से एक असाधारण घटना थी. ऐसे विचित्र दिखने वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे थे. Mrs. Halls, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." सराय की जो मालकिन थी मिसेस हॉल्स, वो ग्रिफिन से मित्रता करने का हर एक संभव प्रयास कर ली थी, लेकिन ग्रिफिन जो था वो बात करने का कोई भी इच्छा नहीं था और उसने उनको बता दिया, उनको मीन्स मिसेस हॉल्स को बता दिया कि आइपिंग में उसका आने का कारण था एकांतवास और वो अपने काम में दखलंदाजी नहीं चाहता था. इसके अलावा एक दुर्घटना में उसका चेहरा खराब हो गया था. Satisfied that her guest was eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Halls was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब संतुष्ट होते हुए कि उनका जो अतिथि है एक सनकी वैज्ञानिक है, अब मिसेस हॉल्स इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने उसने मीन्स ग्रिफिन ने उनको पैसा एडवांस में ही दे दिया था और इस वजह से जो मिसेस हॉल्स थी उसके चिड़चिड़े स्वभाव और विचित्र आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई थी. लेकिन जो चोरी का धन था जो कि वो ग्रिफिन चुराया था वो अधिक दिन तक नहीं चला और ग्रिफिन को जल्दी ही स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब नकद पैसा नहीं है. लेकिन उसने दिखावा किया कि उसके पास किसी भी पल एक चेक आने वाला है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergy's desk. इसके कुछ ही समय के बाद एक अजीब अद्भुत घटना घटी और अपने ही अध्ययन जो था स्टडी रूम है से शोर सुनकर एक पादरी और उनकी पत्नी सुबह जल्दी जग गए और उसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें पैसों की खनक सुनाई दी जो पुजारी या पादरी की जो तिजोरी से निकले जा रहे थे.
without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना किसी आवाज के और हाथ में एक छड़ मजबूती से पकड़े हुए जो पादरी थे, उन्होंने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. There wasn't sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर उनकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल ही खाली है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने टेबल के नीचे देखा, पर्दे के पीछे देखा, यहाँ तक कि चिमनी के अंदर भी देखा। वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। फिर भी तिजोरी खुली हुई थी और घर चलाने के लिए पैसे जो रखे हुए पैसे थे वो गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब अद्भुत घटना, पूरे दिन जो पादरी था ये कहता रहा। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furnitures a little later that morning. लेकिन यह जो घटना थी उतनी अद्भुत नहीं थी जितनी मिसेस हॉल्स के फर्नीचर ने उस दिन सुबह के थोड़ी देर बाद किया। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. जो सराय का मालिक था और उनकी पत्नी थी उस दिन जल्दी ही जाग गए थे और ये देखकर हैरान थे कि जो साइंटिस्ट था उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। ऐसे यह हमेशा बंद रहता था और उसमें ताला लगा हुआ रहता था और वह आग बबूला भी हो जाता था अगर कोई उसके कमरे में घुस गया। The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. अब ये जो अवसर था इतना अच्छा था कि वो खोना नहीं चाहते थे। मिसेस हॉल्स और मिस्टर हॉल्स ये अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा, कोई नहीं दिखा और उन्होंने छानबीन करने का निर्णय लिया। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time and stranger still, the clothes and bandage that he always wore were lying about the room. बिस्तर के जो कपड़ा था यानी कि बेडशीट जो था वो एकदम ठंडा था। लगता था कि जो साइंटिस्ट था वो ज़रूर ही बहुत पहले ही उठ चुका था और अजीब बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वह हमेशा पहनता था कमरे में ही पड़े थे। All of the sudden Mrs. Halls heard a sniff close to her ear. A moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और अचानक से जो मिसेस हॉल्स थी वो अपने कान के पास किसी के सांस लेने का आवाज़ सुनती हैं। एक क्षण बाद बिस्तर के जो पाए थे उससे एक टोपी उछला और उनके चेहरे से जा टकराया। Then the bedroom chair began alive. और फिर जो बेडरूम का जो चेयर था वो एकदम सजीव हो जाता है। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost as she
and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और हवा में उछलते हुए वो जो चेयर थी वो सीधे मिसेस हॉल्स की अगली टांगों पर उसने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही वह और उनके जो पति हैं भयभीत होकर जाने के लिए मुड़े तो वो विचित्र कुर्सी जो थी, जो स्ट्रेन चेयर थी, उन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया और तब ऐसा लगा कि दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया गया। Mrs. Halls almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. जो मिसेस हॉल्स थी वो लगभग बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती हैं। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उस कमरे में जो भूत प्रेत हैं और अजनबी ने किसी भी प्रकार से उन्हें फर्नीचर में दाखिल करा दिया था। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. बेचारी मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। उन्होंने कराहकर कहा, जरा सोचो कि अब वही कुर्सी मेरे विरोध खड़ी हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब पड़ोसियों का जो धारणा थी कि इस मुसीबत का जो कारण है वो जादू टोना है। लेकिन चाहे जादू टोना हो या न हो, जब पादरी के घर में हुई चोरी की घटना की खबर फैली तो उसमें विचित्र जो साइंटिस्ट है के हाथ होने का संदेह किया जाने लगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. संदेह तब और पक्का हो गया जब उसने एकदम से जो नकद था धन पेश किया, क्योंकि कुछ ही समय पहले ग्रिफिन स्वीकार किया था कि उसके पास कोई नकद पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Halls went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. गांव के एक जो कांस्टेबल है को चुपके से बुलवाया गया था, लेकिन जो कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बजाय जो मिसेस हॉल्स थी वो सीधे से साइंटिस्ट के पास गई जो पता नहीं कैसे अपने बेडरूम से कैसे प्रकट हुआ था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब वो अंदर जब जाके पूछती हैं, उस साइंटिस्ट से पूछती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आए हुए हो और तुमने एक ताला लगे कमरे में कैसे प्रवेश किया है। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, पर अब वो एकदम गुस्सा के मारे पागल हो गया था। You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. वो बोलता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन और क्या हूँ, और वो चिल्लाता है। Suddenly, he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. He took him only a minute to do this.
The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. अब और बोलता है कि ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक से वो अपना पट्टियाँ, मूछें, चश्मा और यहाँ तक कि नकली नाक भी उतार फेंक देता है। ऐसे करने से वो जो है केवल 1 मिनट ही लगा उसे। और उस जो होटल में बैठे लोग डर कर बिना सिर के आदमी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. अब गांव का जो कांस्टेबल था, जो मिस्टर जाफर्स थे, वो वहां पहुंच गया था और ये देखकर बिल्कुल ही वो सरप्राइज्ड हो रह गया कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जो बगैर सिर का है। पर जाफर्स को अपना फ़र्ज निभाने से आसानी से नहीं रोका जा सकता था। If magistrate's warrant or ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता ही है, चाहे उसके सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तब वहाँ एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य फिर से उत्पन्न हो गया जब उस कांस्टेबल ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जो और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, क्योंकि वह एक करके अपने कपड़े उतार रहा था। Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अंत में एक जो शर्ट है वो हवा में तैर रहा था और सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाता है जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। कुछ और लोग ने भी सिपाही की सहायता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं वहाँ से कहाँ से उन पर घूंसे पड़ने लगे। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और अंत में क्या होता है कि जाफर्स ने उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो उसे ठोकर मारकर बेहोश कर दिया गया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. वहाँ घबराई हुई उत्तेजित केवल चीखें हवा में भरी हुई थी, उसे पकड़ो, मगर ये करने की बजाय कहना सरल था। ग्रिफिन ने स्वयं को आज़ाद करा लिया था और अब कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कैसे डाले। So students, this is the end of the chapter. Hope you have understood the chapter. Students, I will come back soon with another video of the next chapter. Till then, bye.